गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको एक जो सिस्टम रहता है पूरा लैंग्वेज को प्रोसेस करने का वन बाय वन कि फर्स्टली यूज़र प्रोग्राम गोज़ इनटू द प्री प्रोसेसर, then preprocessor remove all types of irregularities or redundancies or unused code. Then after pre-processing step, this code goes to the compiler. Then compiler convert it to target code or object code, and this object code or target code goes into the assembler. Then assembler convert it into a assembly language or machine level language or code. And after assembler, the working of loader or linker, the loader or linker operation has to be start. Then in this lecture we will discuss about the loader or linker operations. मतलब लोडर और लिंकर का हमारे कंपाइलर में और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या काम है, हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, वंस द असेंबलर procedure an object program, that program must be placed into memory and executed. The assembler could place the object program directly in memory and transfer control to it, thereby causing the machine language program to be execute. This would waste core while leaving the assembler in memory while the user's program was being executed. Also, the programmer would have to retranslate his program with each execution, thus wasting translation time. To overcome this problem of wasted translation time and memory, system program developed another component called loader. इसका ये मतलब है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम या यूज़र प्रोग्राम ड्यूरिंग द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम मेमोरी में स्पेस लेता है, तो लोडर क्या करता है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और मेमोरी, इट प्रोवाइड द स्पेस टू द ऑब्जेक्ट कोड या टारगेट कोड को ये स्पेस प्रोवाइड करता है। तो लोडर का कंसेप्ट समझ में आया। आपके जो प्रोग्राम जब लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम से होके गुजर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में लोडर जो ऑब्जेक्ट कोड होंगे उनको मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लोडर। अ लोडर इज अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि मेमोरी में जगह देता है अपने प्रोग्राम को और उस कोड को, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है। इट वुड बी मोर एफिशिएंट इफ सब रूटीन्स could be translated into object form. The loader could relocate directly behind the user's program. The task of adjusting program of they may be placed in arbitrary core location is called relocation. Relocation loaders perform some functions or 4 functions.
रीलोकेशन क्या होता है, कोड अब लोडर ने मान लो अपने प्रोग्राम को जगह दे दी, स्पेस दे दिया, और उसका कंपाइलेशन प्रोसेस, असेंबलर प्रोसेसिंग ये सब हो रहा है और एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी हो रहा है। तो मान लो इस ड्यूरेशन पे हमने उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए या कुछ एनहांसमेंट किए, तो लोडर क्या करेगा, उसको स्पेस ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड सम अदर एक्स्ट्रा स्पेस टू अवर ऑब्जेक्ट कोड। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द लोडर। नेक्स्ट है ट्रांसलेटर। अ ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम that takes as input a program written in one language and produces as output a program in another language. That means ये क्या करता है, किसी एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को एज अ इनपुट लेता है और इट प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ अनदर लैंग्वेज, और दूसरे लैंग्वेज के प्रोग्राम के आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। Beside program translation, the translator performs another very important role, the error detection. During the compilation process or during the language processing system, translator is also needed for error detection process. That means during the pre-processing, during the compilation process, during the assembling process, if any error is occurred, then it can be found by the translator. Any violation of the HLL high level language specification would be detected and reported to the programmer. The important role of translator are, कुछ रोल्स हैं ट्रांसलेटर्स के, वो हैं, फर्स्ट वन इज़ अ ट्रांसलेटिंग द HLL प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनपुट इनटू अ इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मशीन लेवल प्रोग्राम। ये क्या करता है, HLL प्रोग्राम को उसके करस्पॉन्डिंग मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। अगर हम सेकंड इसके रोल की बात करें तो इट प्रोवाइड डायग्नोस्टिक मैसेजेस वेयर एवर द प्रोग्रामर वायोलेट्स स्पेसिफिकेशन ऑफ द HLL। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, एंड प्री प्रोसेसर की अगर बात करें तो प्री प्रोसेसर भी एक ट्रांसलेटर है, क्योंकि इन तीनों प्रोसेसिंग स्टेप्स में एक प्रोग्राम जो किसी एक फॉर्म में है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए ये तीनों इंटरप्रेटर, कंपाइलर, प्री प्रोसेसर, ये तीनों ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। अगर हम कंपाइलर्स की बात करें, आपने कंपाइलर्स स्टार्टिंग से ही यूज़ कर रहे हो, आपने सी के कंपाइलर के लिए आपने टर्बो सी के देयर आर सो मैनी वर्जन्स वी हैव यूज्ड इन आवर COC प्रोग्रामिंग लैब। तो अगर हम लिस्ट ऑफ कंपाइलर्स की बात करें तो एडा कंपाइलर, एल्गोल कंपाइलर्स, बेसिक कंपाइलर, C# कंपाइलर्स, C++ कंपाइलर, कोबोल कंपाइलर्स, जावा कंपाइलर। जावा में आप लोग देखते होंगे, जावा का अगर प्रोग्राम अगर हमें रन करना है तो JDK जावा डेवलपमेंट किट इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ और एग्जीक्यूटिंग अ जावा कोड। जावा कोड को रन करने के लिए मुझे JDK अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो दीज आर द बेसिक लिस्ट ऑफ कंपाइलर। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लोडर लिंकर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ लिस्ट ऑफ कंपाइलर भी डिस्कस किए,
तो नेक्स्ट जो होगा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।